Welcome to the next lecture of health and disease. Today we are starting with a very interesting side heading about the human blood grouping system. As we know, different individual having the different types of blood, different individual having rather different groups in the blood. Same blood cannot be given to all the person, cannot be given to any person. हमारे ब्लड में ग्रुपिंग सिस्टम है, ब्लड अलग अलग ग्रुप का होता है. आज उसकी डिटेल्स हमको पढ़ना है यहाँ पे. Now the side heading given in your book is antigen on blood cells. That means blood grouping is also decided by, it is determined by antigen. No doubt genes are responsible for deciding the blood group. Genes are responsible, that is genetic material is responsible. DNA is responsible for determining the blood group, but basically DNA makes the antigen and antigen determines the blood group. तो इस चैप्टर में हेल्थ एंड डिजीज में स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट इम्यून सिस्टम. इन द इम्यून सिस्टम हमने एंटीजन एंटीबॉडी का बहुत सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, उसी को कंटिन्यू करते हैं. देखो अब तक हमने पढ़ा था एंटीजेंस आर द फॉरेन पार्टिकल. Antigens are the foreign particle or the toxins produced by the foreign particle which harms the human body generally is called as antigen. लेकिन यहाँ पे जो एंटीजन हम पढ़ने जा रहे हैं, these are the natural antigens, they are present right from birth on the surface of RBCs. इस एंटीजन के लिए हमारा जेनेटिक मटेरियल, हमारा डीएनए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ द साइड हेडिंग एंटीजन ऑन द ब्लड सेल. बेटा हमारी जो ब्लड सेल है पर्टिकुलरली आरबीसी से, फॉर एग्जांपल दिस इज आरबीसी. You have seen the shape and structure of RBC in circulation part. RBC is more or less circular, disc shape, biconcave shape होता है RBC का. RBC की जो surface है that is the membrane of the RBC, plasma membrane of the RBC. इसके RBC की surface पे several antigens are present. This is RBC. RBC की surface पे several antigens are present and these antigens are responsible for determining the different blood group. Several antigens on the surface of RBC and these several antigens determines the blood group. Now as far as blood grouping is concerned, there are several methods to classify the blood. There are several methods to group the blood. So several blood grouping system is present. For example, these all are the blood grouping system, these all are the blood grouping mechanism. ABO is one system of grouping the blood, it is a method of classifying the blood. RH factor on the basis of RH factor, Duffy system, KID system, Lewis system, P method, MNS system and Bombay blood grouping. These are the different methods how to classify the blood. लेकिन इतना सारा हमको नहीं पढ़ना है. Just you remember the name. हमको दो सिस्टम डिटेल में पढ़ना है, एक ABO सिस्टम और एक RH सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये दो ही सिस्टम हमको पढ़ना है, दो ही आपकी बुक में दिया है. I'll give example to you. बच्चों जब भी हम किसी का ब्लड ग्रुप पूछते हैं, एज यू माइट बी नोइंग योर ब्लड ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल माई ब्लड ग्रुप इज AB पॉजिटिव. ये मेरा ब्लड ग्रुप है. तो बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू योर ब्लड ग्रुप, योर ब्लड ग्रुप, किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव होगा, किसी का B पॉजिटिव होगा, किसी का A नेगेटिव होगा, वॉट एवर द ब्लड ग्रुप जो भी हो, इसमें ये जो रिजल्ट हमने बताया AB, this AB is as per ABO system of classification. और ये जो पॉजिटिव है, दिस पॉजिटिव इज RH पॉजिटिव. कुछ लोग RH पॉजिटिव होते हैं और कुछ लोग RH नेगेटिव होते हैं. तो एक्चुअल में ये जो रिजल्ट हम बताते हैं AB पॉजिटिव, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. मतलब हमारे ब्लड ग्रुप के रिजल्ट में ABO सिस्टम भी यूज होता है, RH सिस्टम भी यूज होता है. तो इसी की डिटेल्स हमको पढ़ना है. Now starting with the ABO system, RH system we'll see later on. बच्चों as per ABO system of blood grouping, as per ABO system of blood classification, two different types of antigens are present on the surface of RBC. Two different types of antigen. I am talking about ABO system, right? As per ABO system of classification, two different types of antigens may be present. Both may be present. सिर्फ एक भी हो सकती है या एक भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है. तो two different types of antigens might be present on the surface of RBC and they are responsible for determining ABO blood grouping system.
रिमेंबर दीज एंटीजेंस, ये एंटीजेंस जो आरबीसी पे प्रेजेंट होती है, ये हमारे, इसके लिए हमारी जीन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये हेरिडिटरी है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, उसके ट्रांसफर होने का भी एक पैटर्न है, कॉन्सेप्ट है। तो एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। सिमिलरली corresponding antibodies are present in the liquid part of the blood, that is serum is a liquid part of the blood। प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा सीरम में there is a minor variation by the way। तो सीरम is a liquid part of the blood। लिक्विड पार्ट में कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, उसकी डिटेल में आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझ में आएगा आपको। देखो बच्चों, लिसन केयरफुली। से फॉर एग्जांपल ये कोई इंडिविजुअल है, ये उसकी आरबीसी है, दिस इज आरबीसी। अगर आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर अगर यहां पर है एंटीजन ए, यहां पर है एंटीजन ए, अगर किसी की आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा, उसके सीरम में, उसके लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड में प्रेजेंट होगी एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। रिमेंबर इन दिस मेथड वी आर राइटिंग एंटीजन इन कैपिटल लेटर एंड एंटीबॉडी इन स्मॉल लेटर, जस्ट यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड ग्रुप, ओके, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए वाले इंडिविजुअल में आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए होगी और उसके सीरम में एंटीबॉडी बी होगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चों, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इस बार पैटर्न चेंज हो जाएगा ना। ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन बी होगी और सीरम में एंटीबॉडी ए होगा, सीरम में एंटीबॉडी ए होगा। रिमेंबर सेम एंटीजन एंड सेम एंटीबॉडी will never be present in the same individual। अगर इसमें एंटीजन ए होता और एंटीबॉडी भी ए होता तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता, उसके ब्लड का कोगुलेशन, क्लॉटिंग हो जाता, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाता वहां पे। इसलिए सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट नहीं होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी उल्टा, ए का अपोजिट बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है, उसकी एंटीबॉडी ए अपोजिट प्रेजेंट होगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बेटा ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, राइट, तो उसके आरबीसी के सरफेस पे और उसके आरबीसी के सरफेस पे दो एंटीजन प्रेजेंट होगी। उसके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगी, एंटीजन बी भी प्रेजेंट होगी। एंटीजन ए और एंटीजन बी दो एंटीजन प्रेजेंट होगी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू एंटीजन उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। रिमेंबर ऐसे इंडिविजुअल के सीरम में, उसके लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड में नन ऑफ द एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, नो एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, क्योंकि दोनों एंटीजन है ए और बी है। कोई भी एंटीबॉडी होता तो रिएक्शन हो जाता, इसलिए नो एंटीबॉडी, यहां पे यू विल राइट नो एंटीबॉडी। ओके, दिस इज द थर्ड केस। नाउ द फोर्थ केस, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, बेटा ब्लड ग्रुप ओ होगा तो उसके आरबीसी के सरफेस पे, उसके आरबीसी के सरफेस पे नो एंटीजन, एंटीजन ही नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, नन ऑफ द एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। लेकिन उसके ब्लड के लिक्विड पार्ट में, दैट इज उसके सीरम में, उसके सीरम में दोनों एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी। बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग, डिपेंडिंग अपॉन द एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं एज पर एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो ओ होगा। अगर आपके माइंड में अभी नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है तो उसको साइड में रखो, उसको हम 5 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे आरएच फैक्टर में। आई एम टॉकिंग अबाउट एबीओ सिस्टम। आपका जो भी, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आपका ब्लड ग्रुप या तो ए है, या तो बी है, या तो ए बी है, या तो ओ है। चार में से कोई भी एक ब्लड ग्रुप है, राइट, पांचवा नहीं है एज पर एबीओ सिस्टम। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका रीजन है
एंटीजन ए इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी इज प्रेजेंट, ब्लड ग्रुप ए बी है, बोथ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट, और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो नन ऑफ द एंटीजन इज प्रेजेंट। ओ का मतलब ये नहीं कि एंटीजन ओ प्रेजेंट है, ओ का मतलब जीरो, ओ का मतलब नो एंटीजन, ओ का मतलब नन ऑफ द एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। इज इट क्लियर? यहां पे कोई भी एंटीजन नहीं होगी, ये पॉइंट क्लियर हुआ। और एंटीबॉडीज जो है ना, याद रखना, सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी एक इंडिविजुअल में एट अ टाइम नहीं हो सकती। अगर इसका ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडी इसके पास बी होगी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीबॉडी होगा ही नहीं, नन ऑफ द एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ओ है मतलब नो एंटीजन, तो बोथ द एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। ये मैंने आपको एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट बताया। अभी मैं टेबल में भी एक बार रिवाइज कर दूंगा। ये एक पॉइंट क्लियर हुआ, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, अपार्ट फ्रॉम दिस एंटीजन एंटीबॉडी, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो अलग अलग एंटीजन्स हैं, अलग अलग एंटीजन्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड ग्रुप, अगर आई एम टॉकिंग, यहां पे लिख रहा हूं, इफ द ब्लड ग्रुप इज A, as you know, antigen present on the surface of RBC, antigen A होगा, blood group B तो antigen B, blood group AB तो antigen A and B, blood group O no antigen, okay, no antigen. Now genotype of the individual, genotype, genetic constituent, जो हेरिडिटी वेरिएशन चैप्टर में आपने जीनोटाइप पढ़ा है, उसमें एक एग्जांपल था मल्टीपल अलील। Multiple allele, more than 2 types of alleles are responsible for controlling same character. Blood grouping, ABO system of blood grouping is the example of multiple allele. हमारे ABO blood grouping system को कंट्रोल करने के लिए 3 genes are responsible. एक जीन का नाम है IA, एक जीन का नाम है IB, एक जीन का नाम है IO. IO can also be written as small I, बुक में IO लिखा है। IA एंड IB ये दोनों डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट जीन है, एंड IO इज अ रेसेसिव जीन, ये वाली जीन रेसेसिव है। अभी अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्रुप उनका जीनोटाइप क्या होगा बेटा? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? आई एम टॉकिंग अबाउट जीनोटाइप। उसका जीनोटाइप होगा, इसका जीनोटाइप होगा IA दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, बोथ IA जीन्स आर प्रेजेंट, या दूसरी पॉसिबिलिटी है उसका जीनोटाइप होगा IA-IO, ये जीनोटाइप होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जीनोटाइप होगा IB-IB या फिर IB-IO। ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव जीन्स आर प्रेजेंट, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, ये डोमिनेंट जीन रेसेसिव जीन को सप्रेस कर देगी। डोमिनेंट जीन सप्रेस द एक्शन ऑफ रेसेसिव जीन। इसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा, मतलब ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, रिमेंबर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसका जीनोटाइप होगा IA-IB, नो अदर पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी है IA-IB। इसके पास दोनों डोमिनेंट जीन है, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप AB है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है तो उसका जीनोटाइप कंपल्सरीली, उसका जीनोटाइप क्या होगा? IO-IO, बोथ द रेसेसिव जीन्स आर प्रेजेंट, इसीलिए दोनों रेसेसिव जीन है, इसीलिए उसका ब्लड ग्रुप O हुआ। सो दिस इज द जीनोटाइप का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको एंटीजन का कॉन्सेप्ट बताया, सीरम में दैट इज लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड में एंटीबॉडीज का कॉन्सेप्ट बताया, जीनोटाइप का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया, जीनोटाइप का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। बेटा अभी इसी चीज को 1 मिनट मैं आपको टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। The same table is given in your textbook. This table shows ABO blood group in human. Just I am going to explain few points from this table. You can see in the first column blood groups are given. Blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. अभी वो यूनिवर्सल और डोनर वाला कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी वापस से एक्सप्लेन करूंगा। Blood group is given in the first column. In the second column, genotype is given.
अगर ब्लड ग्रुप ए है तो जीनोटाइप विल बी IA दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट और IA दैट इज हेट्रोजाइगस. इफ ब्लड ग्रुप इज बी, genotype will be IB that is homozygous dominant or IBIO that is heterozygous. If blood group is AB, both the dominant genes are present, that is IA and IB, and if blood group is O, none of the dominant gene is present, both the recessive genes are present, IO and IO is present. This is all about the genotype, that is about the gene. Now come to the next column, third column, antigens present on the surface of RBC. अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो बच्चों उसके RBC के सरफेस पे एंटीजन A होगा, सेम एंटीजन विल बी प्रेजेंट. ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन B प्रेजेंट होगा. ब्लड ग्रुप AB है तो बोथ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट, एंटीजन AB होगा और एंटीजन B भी होगा. और ब्लड ग्रुप O है तो नो एंटीजेंस आर प्रेजेंट. ओ का मतलब एंटीजन ओ नहीं होता है, ओ का मतलब नो, जीरो, नन ऑफ द एंटीजन इज प्रेजेंट, निल लिखा है बुक में, राइट. सी इन द फोर्थ कॉलम, एंटीबॉडीज इन सीरम इज गिवन. सीरम इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट. सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट नहीं होगी, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी. अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है. ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी. एंड इफ ब्लड ग्रुप इज ए बी, बोथ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट, सो नन ऑफ द एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट इन द सीरम. इसी तरह से अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो नो एंटीजन इज प्रेजेंट बट बोथ द एंटीबॉडीज, दैट इज एंटीबॉडी ए as well as antibody B, both the antibodies are present in the serum. तो ये इतना पार्ट मैंने कवर किया. अभी उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आगे मैं बताता हूँ. Now the next part in the blood group is blood transfusion. In blood transfusion what we have to study mainly कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है. The person who gives the blood, the person who donates the blood is called as donor, and the person who receives the blood, who get the blood is called as receiver or recipient भी बोल सकते हैं. Remember, donor is giving blood to the recipient. Now what is the criteria for transfusion? Which blood group we have to consider? What criteria we have to consider while donating the blood? सबसे पहले जिसको ब्लड चाहिए रिसिपिएंट को, रिसीवर को, उसका ब्लड ग्रुप हम फाइंड आउट करेंगे, राइट. अगर हमको ब्लड ग्रुप मालूम पड़ गया तो वी हैव टू फाइंड आउट द एंटीजन प्रेजेंट इन द रिसीवर्स बॉडी. से फॉर एग्जांपल अगर इसका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, ऑन लेट अस टेक एबीओ सिस्टम के हिसाब से इसका ब्लड ग्रुप है बी. अगर इसका ब्लड ग्रुप बी है, बेटा इसका ब्लड ग्रुप बी है तो इसके बी ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है? एंटीजन बी इज प्रेजेंट. तो हु कैन डोनेट ब्लड टू दिस पर्सन? Remember, no extra antigen, no additional antigen should enter in the body of recipient from the donor side. सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखोगे, everything will be clear about blood transfusion. No extra or additional antigen should enter in the body of receiver from the donor side. इसके पास एंटीजन B है, बेटा अगर एंटीजन B इसमें आएगी तो चलेगा, एंटीजन B से कम आएगी तो भी चलेगा, मगर एडिशनल एंटीजन आएगी तो नहीं चलेगा. रिमेंबर, अब ये पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है, बेटा ए वाला पर्सन कैन नॉट डोनेट टू बी वाला पर्सन. ए कैन नॉट डोनेट बिकॉज एक्स्ट्रा एंटीजन चली जाएगी. जिसका ब्लड ग्रुप बी है ये डोनेट कर सकता है, सेम एंटीजन होगी. जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है ये भी डोनेट नहीं कर सकता, क्यों? इसके पास एडिशनल एंटीजन ए है, एडिशनल नहीं जाना चाहिए. ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो ओ कैन डोनेट, कम जा रहा है तो इट्स ओके, एडिशनल नहीं जाना चाहिए, ओ कैन डोनेट. तो अगर ब्लड ग्रुप बी है, रिसीवर का ब्लड ग्रुप बी है तो बी भी डोनेट कर सकता है, ओ भी डोनेट कर सकता है. सिमिलरली यू कैन चेंज द सिनेरियो. अगर रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप, बेटा रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, इमेजिन ए बी है, उसके पास दो एंटीजन होगी ना, ए बी होगी और बी भी होगी, और एबीओ सिस्टम के हिसाब से दो ही एंटीजन होती है.
तो इसको ए भी डोनेट कर सकता है, बी भी डोनेट कर सकता है, ए बी भी डोनेट कर सकता है, ओ भी डोनेट कर सकता है. दैट इज वाई ब्लड ग्रुप ए बी विल बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रिसीवर, विल बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट. और अगर जिसका ब्लड ग्रुप ओ है बेटा ये किसी को भी डोनेट करे, किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट करे, तो विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि इसके पास एंटीजन है ही नहीं. प्रॉब्लम कब होता है? एडिशनल एंटीजन के जाने से प्रॉब्लम होता है. तो अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन द रिसीवर्स बॉडी. दैट इज वाई ब्लड ग्रुप ओ विल बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर. AB is universal recipient and this O is universal donor. So that is a criteria. अभी टेक्स्ट बुक में इसी क्राइटेरिया के बेस पे टेबल में ऐड किया है, वो मैं एक्सप्लेन करता आपको. Now see last two columns. In the second last column it is given person can donate blood to, and in the last column it is given person can receive blood from. अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ए कैन डोनेट ब्लड टू ए और ए बी. जिसका ब्लड ग्रुप ए है, पर्सन विथ ए ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू ए को दे सकता है, सेम होगा, और ए बी को भी दे सकता है, बिकॉज ए बी के पास दो एंटीजन है और ए के पास एक ही एंटीजन है ए, तो कम एंटीजन जाएगी तो चलेगा. सिमिलरली अगर ब्लड ग्रुप ए है तो बेटा ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान किससे ब्लड ले सकता है, रिसीव किससे कर सकता है? ए से कर सकता है और ओ से कर सकता है. सिमिलरली अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो बी पर्सन कैन डोनेट ब्लड टू बी और कैन डोनेट ब्लड टू ए बी. अगर उसको लेना पड़ा तो वो किससे ले सकता है? बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है. नेक्स्ट ए बी. देखो ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट. अगर वो ब्लड डोनेट करना चाहे तो सिर्फ ए बी को ही डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर ब्लड रिसीव करना चाहे तो चारों ब्लड ग्रुप से ले सकता है. ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है. राइट. लास्ट पार्ट, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर. ओ ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल किसी को भी डोनेट कर सकता है. ए को भी कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है, ओ को भी कर सकता है. बट इफ सच इंडिविजुअल नीड्स ब्लड तो उसको सिर्फ और सिर्फ ओ ही ब्लड एक्सेप्ट होगा और दूसरा ब्लड वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको प्रॉब्लम हो जाएगा. सो दिस ऑल अबाउट द क्राइटेरिया फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन. Now next method of classifying the blood is depending upon the RH factor. Depending upon RH factor, blood can be classified into two categories. This is also done on the basis of presence of antigen on the surface of RBC. Remember, this RH stand for rhesus factor. Rhesus is a species of monkey. उस monkey के basis पे नाम दिया गया है rhesus factor. हमारी जो RBC है बेटा, हमारी ये RBC है, RBC की सरफेस पे एक एंटीजन है जिसका नाम है एंटीजन D, oftenly called as antigen D. This antigen D has nothing to do with antigen A and B. A और B की जीन अलग है और RH फैक्टर यानी एंटीजन D की जीन अलग है. ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं, एक दूसरे का कोई रिलेशन संबंध नहीं है. बाय द वे, तो if antigen D is present on the surface of RBC, if antigen D is present on the surface of RBC, such individuals are called as RH positive. और अगर आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन डी नहीं है, एंटीजन डी नहीं है, इफ एंटीजन डी इज एब्सेंट, तो सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज आरएच नेगेटिव. तो बेटा आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव, आपका जो भी ब्लड ग्रुप होता है उसके आगे आप पॉजिटिव या नेगेटिव लिखते हैं. दिस डिपेंड्स अपॉन दी presence of rhesus antigen, also called as antigen D. If antigen D is present, individual is RH positive. If antigen D is absent on the surface of RBC, उसका blood group RH negative होगा. Now depending upon this RH factor, अभी जो हमने ABO system पढ़ा था,
earlier we have studied about the ABO system. बेटा ABO system और RH system दोनों को combined करके अगर हम study करें, although this case is not given in the textbook, but in order to clarify the concept मैं आपको समझा दूं. देखो बेटा blood group जो है ना आपने पढ़ा था, depending upon ABO system blood group A होगा या तो B होगा या तो AB होगा या तो O होगा. Now if you consider RH system also, each blood group is further classified into two categories. A blood group may be positive or it may be negative. B blood group may be positive. B blood group may be positive or negative. AB blood group may be positive or negative. O blood group may be positive or negative. यानी total 2 4s are 8 types of blood group. Now let me clarify this point. अगर किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, लेट अस टेक दिस एग्जांपल, ब्लड ग्रुप अगर A पॉजिटिव है, राइट, A पॉजिटिव, तो बेटा उसके आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन A होगा और एंटीजन D होगा, दो एंटीजन होगा ना. एबीओ सिस्टम में दो एंटीजन होता है A और B, और RH सिस्टम में एक एंटीजन होता है एंटीजन D. इफ यू कंसीडर ऑल द थ्री एंटीजन, एंटीजन A, एंटीजन B एंड एंटीजन D, इफ यू कंसीडर ऑल द थ्री एंटीजन, AB is responsible for ABO system, एंटीजन D is responsible for RH factor. ओके, A पॉजिटिव में A होगा और D होगा, A नेगेटिव में ओनली A एंटीजन इज प्रेजेंट, D नहीं होगा. B पॉजिटिव में B और D, B नेगेटिव में ओनली B. AB पॉजिटिव में A, B एंड D तीनों होगा, AB नेगेटिव में A और B होगा, D नहीं होगा. O पॉजिटिव में एंटीजन D प्रेजेंट होगा, और O नेगेटिव में नन ऑफ द एंटीजन, नीदर A नॉर B नॉर D, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा. Now on this basis, if you decide the criteria of blood transfusion, if you consider all the factor, the person who gives the blood is donor, the person who takes the blood is recipient. अब कौन किसको ब्लड दे सकता है, तो बेटा इसके हिसाब से अगर हम ABO सिस्टम और RH सिस्टम दोनों को कंसिडर करें, कंसिडरिंग बोथ द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव जिसके पास तीनों एंटीजन है विल बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यूनिवर्सल रिसीवर होगा. उसके पास तीनों एंटीजन है तो वो यूनिवर्सल रिसीवर होगा. AB पॉजिटिव मतलब ये वाला इंडिविजुअल, इसको किसी का भी ब्लड ले सकता है. ये दिस पर्सन कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम एनी इंडिविजुअल, एंड पर्सन विथ O नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर. ये यूनिवर्सल डोनर होगा. रिमेंबर, O पॉजिटिव इज नॉट यूनिवर्सल डोनर बिकॉज O पॉजिटिव के पास एंटीजन D होगा विच मे क्रिएट प्रॉब्लम, और O नेगेटिव के पास नन ऑफ द एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, इसके लिए वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. तो इफ यू कंसीडर बोथ द थिंग्स, इफ यू कंसीडर ABO सिस्टम एंड RH सिस्टम, बोथ द सिस्टम कलेक्टिवली, तो रिमेंबर AB पॉजिटिव इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट एंड O नेगेटिव इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर. The last part of the blood group is there is a problem related with the incompatibility of the blood group. The name of the problem, which may be seen in the embryonic development or can be observed in just born babies, the name of the problem is HDN, that is erythroblastosis fetalis, hemolytic disease of newborn और erythroblastosis fetalis. दो अलग अलग नाम है, एक ही कंडीशन है. ये क्या होता है, क्यों होता है, I'll try to explain you. Say for example, this is male and this is female. ये husband है, ये wife है, right? अभी शादी से पहले ब्लड ग्रुप चेक करने की रस्म तो जनरली इंडिया में नहीं है, बट स्टिल ब्लड ग्रुप अलग होने की वजह से एक प्रॉब्लम बच्चे में हो सकता है. वो कौन सी केस है मैं आपको समझाता हूं. ABO ब्लड ग्रुपिंग अलग होने से प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम RH फैक्टर से होता है. RH फैक्टर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से होता है. रिमेंबर, ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, एज पर ABO सिस्टम ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन RH फैक्टर से प्रॉब्लम हो सकता है. अगर हस्बैंड भी पॉजिटिव है, वाइफ भी पॉजिटिव है, नो इश्यू, इट इज परफेक्टली ओके. अगर हस्बैंड भी नेगेटिव है, वाइफ भी नेगेटिव है तो भी ओके. अगर हस्बैंड नेगेटिव है और वाइफ पॉजिटिव है तो भी ओके.
no issue. The issue will only arise if the female is negative और उसका husband उसको positive मिला. This condition may create problem. This condition may create problem. कोई भी, I mean male is positive, कोई भी positive, A positive, B positive, AB positive और O positive. Female is negative, any negative, कोई भी negative है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है. कैसा प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा? प्रॉब्लम उनमें, हस्बैंड वाइफ में नहीं होगा, उनके बच्चे में होगा, वो भी फर्स्ट बच्चे में नहीं होगा, सेकंड चाइल्ड में होगा. द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज hemolytic disease of newborn or erythroblastosis fetalis. Now what happened in this case, what happened in this problem? Listen carefully. देखो, during embryonic development of the first child, ये फीमेल नेगेटिव है और ये फीमेल प्रेग्नेंट है. इसके वुम्ब में जो बच्चा डेवलप हो रहा है, वो बच्चा से फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है, उसको फादर की पॉजिटिव जीन मिली, बच्चा पॉजिटिव है. से फॉर एग्जांपल दिस इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. से ये एम्ब्रियो है, ये उसका अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये प्लासेंटा है, दिस इज प्लासेंटा, एंड दिस इज मैटरनल ब्लड, दिस इज मैटरनल बॉडी, दिस इज अ बैरियर, प्लासेंटा इज अ बैरियर. ये प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा है. रिमेंबर, फीमेल इज नेगेटिव, फीमेल इज नेगेटिव, फीमेल नेगेटिव है और उसका बच्चा इज पॉजिटिव, बच्चा पॉजिटिव है. बेटा, प्लासेंटा इज अ बैरियर एंड बिकॉज ऑफ दिस बैरियर मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड जनरली डजंट मिक्स. बट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, दैट इज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पे जब प्लासेंटा सेग्रीगेट होता है तो ब्लड की पार्शियल मिक्सिंग होती है, ब्लड की पार्शियल मिक्सिंग होती है. एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के टाइम पे बेटा बच्चे का ब्लड, बच्चे का थोड़ा सा ब्लड मां की बॉडी के टच में आया, मां का ब्लड बच्चे के टच में आया. ओके, जब बच्चे का ब्लड मां के टच में आया तो बच्चा इज पॉजिटिव, मतलब बच्चे के पास एंटीजन डी प्रेजेंट है. RH पॉजिटिव में एंटीजन डी प्रेजेंट होती है. मदर इज नेगेटिव, मदर डू नॉट हैव एंटीजन डी, यानी बच्चे की तरफ से मां की बॉडी में चला गया एंटीजन डी, एंटीजन डी चला गया. Now this antigen D will stimulate the immune system of the mother. बच्चा तो पैदा हो गया, फर्स्ट बच्चा इज एब्सोल्युटली हेल्दी एंड नॉर्मल, उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये पहला बच्चा सेग्रीगेट हो गया, ये पहला बच्चा नॉर्मल है, लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे मां की बॉडी में एंटीजन डी चला गया. नाउ दिस एंटीजन डी विल स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, और एंटीजन डी के लिए इसका इम्यून सिस्टम, मदर का इम्यून सिस्टम विल मेक एंटीबॉडी डी, will make antibody D, antibody D का प्रोडक्शन होगा. This antibody D will destroy the antigen D. मां में फिजिकली या फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मां के अंदर बस एंटीबॉडी डी प्रोड्यूस हो गया जो आज से पहले कभी नहीं था, फर्स्ट टाइम लाइफ में प्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट डिलीवरी के बाद. After few months or few years, when the mother conceived for the second time, when this lady conceived for the second time वो प्रेग्नेंट हो गई और ये बच्चा अभी भी पॉजिटिव है, ये बच्चा वापस से पॉजिटिव है. बेटा, इस बच्चे के पास एंटीजन डी है, पॉजिटिव मतलब एंटीजन डी. इस टाइम मां के पास एंटीबॉडी डी है. रिमेंबर, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मां के पास एंटीबॉडी डी नहीं था, सेकेंड प्रेगनेंसी में मां के पास एंटीबॉडी डी है. नाउ दिस एंटीबॉडी कैन क्रॉस द बैरियर ऑफ प्लासेंटा. हमने इम्यून सिस्टम में पढ़ा था, मां की तरफ से बच्चे में एंटीबॉडीज जाती है, प्लासेंटा क्रॉस करके जाती है. उसके लिए मैंने एक वर्ड बताया था, ट्रांस प्लासेंटल ट्रांसमिशन होता है. तो मां की एंटीबॉडी डी बच्चे की बॉडी में जाएगी एंड दिस एंटीबॉडी विल डिस्ट्रॉय द एंटीजन, बच्चे के एंटीजन डी को डिस्ट्रॉय करेगी. एंटीजन डी इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, यानी बच्चे की आरबीसी क्लॉट होने लगेगी, बच्चे की आरबीसी बच्चे की बॉडी के अंदर क्रैम्प होने लगेगी बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी डी इज कमिंग फ्रॉम द मैटरनल साइड. और ये बच्चा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही मर सकता है या हैंडीकैप पैदा हो सकता है, उसके अंदर कोई मेजर एबनॉर्मेलिटी हो सकती है. This condition which is seen in the second child, this abnormality which is seen in the second child is called as hemolytic disease of newborn. It may also be called as erythroblastosis fetalis. बच्चों, this is a problem, this is really a problem, but it can be solved. Solution is not given in the book. मैं 2 मिनट में आपको शॉर्ट में समझा देता हूं. During embryonic development,
डॉक्टर्स जब वो प्रेग्नेंट लेडी के सब टेस्ट कराते हैं उसमें ब्लड ग्रुप का भी टेस्ट कराते हैं, और अगर वो नेगेटिव निकली, फीमेल नेगेटिव निकली, तो बोलेंगे हस्बैंड का टेस्ट कराओ, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक कराओ। अगर हस्बैंड भी नेगेटिव निकला तो नो इश्यू, बट इफ हस्बैंड इज पॉजिटिव तो देयर इज अ चांस, डॉक्टर उसको समझाएंगे। और फर्स्ट डिलीवरी के बाद, फर्स्ट डिलीवरी इज टोटली सेफ, उसके बाद उसको एक इंजेक्शन दिया जाएगा एंटी-RH एंटीबॉडीज का। ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज का इंजेक्शन दिया जाएगा, एंड दिस इंजेक्शन विल मेक द सेकेंड प्रेगनेंसी सेफ। और उसके बाद फीमेल जितनी बार भी प्रेग्नेंट होगी, हर प्रेगनेंसी में अगर बच्चा पॉजिटिव हुआ तो रिस्क होगा, और हर बार उसको ये इंजेक्शन एंटी-RH एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर करना होगा बॉडी में। So this is all about the erythroblastosis fetalis और hemolytic disease of newborn। यहाँ पर अपना ये ब्लड ग्रुप वाला पार्ट कंप्लीट होता है, मतलब we have completed the immune system वाला पार्ट, immunity वाला पार्ट we have completed। From next lecture onwards we'll start with the different type of diseases, pathogens and diseases के बारे में हमको स्टार्ट करना है।